Hello everyone, this is Ahsan Ali, Assistant Professor, Department of Teacher Education, Khandelwal College of Management Science and Technology. Today I am here to present my tutorial on need theory of motivation given by Abraham Maslow. Before going to present this theory, we should know a brief introduction of Abraham Maslow. Abraham Maslow is also known as the spiritual father of humanistic psychology. The full name of Abraham Maslow is Abraham Harold Maslow. He is an American psychologist who was best known for creating Maslow's hierarchy of needs, a theory of psychological health predicated on fulfilling innate human needs in priority, culminating in self-actualization. Maslow was a psychology professor at Alliant International University, Brandeis University, Brooklyn College, New School for Social Research, and Columbia University. He stressed the importance of focusing on the positive qualities in people as opposed to treating them as a bag of symptoms. A review of Journal Psychology survey published in 2002 ranked Maslow as the 10th most cited psychologist of the 20th century. The need theory. What is the need theory? Need theory is attempt to identify internal factors that motivate an individual's behavior and are based on the premise that people are motivated by unfulfilled needs. मैस्लो का मानना था कि जब इंसान किसी मुआशरे में रहता है तो उसे उस मुआशरे में सर्वाइवल करने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब उसे उन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है या वो उन बुनियादी चीज़ों की कमी महसूस करता है तो उसके अंदर एक डायरेक्टिंग फोर्स उत्पन्न होता है जिससे वो इंसान मोटिवेट होता है और एक स्पेशल टाइप का बिहेवियर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, if you were dissatisfied with living in your parents' basement at age 40, you might go out and find your own apartment. In doing so, you will fulfill the needs for privacy, independence, and the ability to bring a date home without having to explain why you still live with your parents. Needs are physiological or psychological insufficiencies that provoke some type of behavioral response. The needs a person has can range from weak to strong and can vary based on environmental factors, time, and place. Maslow's hierarchy of need theory. What is the hierarchy of need theory? One of the most popular need theories is Abraham Maslow's hierarchy of need theory. Maslow proposed that motivation is the result of a person's attempt at fulfilling five basic needs, namely physiological, safety, social, esteem, and self actualization. According to Maslow, these needs can create internal pressure that can influence a person's behavior. The first is physiological needs. Physiological needs are those needs required for human survival, such as air, food, water, shelter, clothing, and sleep. As a manager, you can account for physiological needs of your employees by providing comfortable working conditions, reasonable work hours, and the necessary breaks to use the bathroom and eat or drink. अब्राहम मैस्लो ने इन फिजियोलॉजिकल नीड्स में इंसान की ज़रूरियात की चीज़ें जैसे एयर, फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग एक्सेट्रा को इसमें रखा है। उसने उदाहरण के तौर पे बताया कि अगर आप एक मैनेजर हैं और आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करनी है एम्प्लॉयज़ की, तो आप उन फिजियोलॉजिकल नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हैं? आप अपने एम्प्लॉयज़ को उनके कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करा सकते हैं, रीजनेबल वर्क आवर्स दे सकते हैं, या उनको जितना भी नेसेसरी ब्रेक चाहिए होता है वॉशरूम के लिए या खाने के लिए या पीने के लिए, आप वो दे करके उसकी ज़रूरियात की चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ द सेफ्टी नीड्स. What is the safety needs? Safety needs include those needs that provide a person with a sense of security and well-being. Personal security, financial security, good health, and protection from accidents, harms, and their adverse effect are all included in safety needs. अब्राहम मैस्लो ने सेफ्टी नीड्स में इंसान की पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, गुड हेल्थ और प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट्स, इन सारी चीज़ों को उसने सेफ्टी नीड्स में रखा। अब्राहम मैस्लो का मानना था कि अगर इंसान की एक नीड पूरी हो जाती है, यानी कि सपोज़ कीजिए कि अगर उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, वो तभी सेफ्टी नीड्स की तरफ जा सकता है।
अब्राहम मैस्लो ने बताया कि ऐसे 85% पीपल्स होते हैं जो अपनी फर्स्ट यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर पाते हैं। दूसरी नीड्स सेफ्टी नीड है। अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग सेफ्टी नीड को पूरा करने वाले 75% पीपल्स होते हैं। जो 70 और 75% पीपल ऐसे होते हैं जो इस नीड को फुलफिल कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अ मैनेजर यू कैन अकाउंट फॉर द सेफ्टी नीड्स फॉर योर एम्प्लॉयज़ बाय प्रोवाइडिंग सेफ वर्किंग कंडीशंस, सिक्योर कंपनसेशंस एंड जॉब सिक्योरिटी, विच इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट in a bad economy. The third one is the social needs. अब्राहम मैस्लो ने बताया कि जब इंसान की पहली ज़रूरियात की चीज़ें जैसे फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई, सेकंड वन सेफ्टी नीड पूरी हो गई, यानी कि उसकी ज़रूरत की चीज़ें रोटी कपड़ा मकान उसको मिल गया, सेफ्टी उसको मिल गया, तो थर्ड वन आती है सोशल नीड्स। यहाँ पे इंसान चाहता है कि कोई उसे प्यार करे, कोई वो कहीं पे चैरिटी करे, किसी के साथ कुछ शेयर करे, तो ऐसी चीज़ों को उसने सोशल नीड्स में रखा है। सोशल नीड्स ऑल्सो कॉल्ड लव एंड बिलोंगिंग्स रेफर टू द नीड टू फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एक्सेप्टेंस। सोशल नीड्स आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन्स सो दैट दे डू नॉट फील अलोन, आइसोलेटेड एंड डिप्रेस्ड। अब्राहम मैस्लो ने इसमें फ्रेंडशिप, फैमिली एंड इंटीमेसी ऑल वर्क टू फुलफिल सोशल नीड्स, यानी कि अब्राहम मैस्लो ने बताया कि इसमें फ्रेंडशिप या फैमिली एंड इंटीमेसी को इसमें सोशल नीड्स में रखा है। फॉर एग्जांपल, एज अ मैनेजर यू कैन अकाउंट फॉर द सोशल नीड्स ऑफ योर एम्प्लॉयज़ बाय मेकिंग श्योर ईच ऑफ योर एम्प्लॉयज़ नो one another, encouraging cooperative teamwork, being an accessible and kind supervisor, and promoting a good work-life balance. अब्राहम मैस्लो ने बताया जब इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती हैं, तब वो सोशल नीड्स की तरफ बढ़ता है। सोशल नीड्स की तरफ जब बढ़ता है तो उसने इस सोशल नीड्स में इंक्लूड किया है लव एंड चैरिटी को, कि अगर इंसान को उसकी ज़रूरियात की चीज़ें मिल जाएं, सेफ्टी उसको मिल जाए, तो थर्ड वन वो सोशल नीड्स चाहता है, यानी कि कोई उसे प्यार करे, वो किसी चैरिटी में हिस्सा ले, एट्सेट्रा। इन चीज़ों को उसने इंक्लूड किया है। अब्राहम मैस्लो के अकॉर्डिंग 50% पीपल ऐसे होते हैं जो इस सोशल नीड्स को फुलफ़िल कर पाते हैं। The next one is the esteem needs. What is the esteem needs? Esteem needs refer to the need for self-esteem and respect, with self-respect being slightly more important than gaining respect and admiration from others. As a manager, you can account for the esteem needs of your employees by offering praise and recognition when the employee does well, and offering promotions and additional responsibilities to reflect your belief that they are a valued employee. फोर्थ आती है एस्टीम नीड। इस अब्राहम मैस्लो ने इस नीड्स में सेल्फ एस्टीम को, में रेस्पेक्ट को, सेल्फ रेस्पेक्ट को, एडमिरेशन को इंक्लूड किया है। उसने बताया उदाहरण के तौर पे कि अगर आप एक मैनेजर हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूशंस के, किसी भी कंपनी के अगर आप मैनेजर हैं और आप अपने एम्प्लॉयज़ की एस्टीम्स नीड्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप उनको प्रेज़ कर सकते हैं। जब वो आपके एम्प्लॉय अच्छा वर्क करके देते हैं तो आप उनको प्रेज़ कर सकते हैं, उनको प्रमोशन दे सकते हैं या एडिशनल कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे सकते हैं, जिससे कि वो उसमें सेल्फ एस्टीम का डेवलपमेंट हो। अब्राहम मैस्लो का मानना था कि 40% पीपल ऐसे होते हैं कि जो अपनी इस नीड को यानी कि सेल्फ एस्टीम को पूरा कर पाते हैं। द लास्ट वन इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। व्हाट इज़ द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स? Self-actualization needs describe a person's need to reach his or her full potentials. The need to become what one is capable of is something that is highly personal. While I might have the need to be a good parent, you might have the need to hold an executive level position within your organization, because this need is individualized. As a manager, you can account for this need by providing challenging work, inviting employees to participate in decision making, and giving them flexibility and autonomy in their jobs. अब्राहम मैस्लो का मानना था कि इंसान की जो सबसे लास्ट स्टेज होती है
या जो सबसे लास्ट नीड होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो उसके हाईली पोटेंशियल को शो करता है। और अब्राहम मैस्लो का मानना था कि सिर्फ 10% पीपल ऐसे होते हैं जो इस हाईली एस्टीम नीड को यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को कंप्लीट कर पाते हैं या फुलफ़िल कर पाते हैं। अब्राहम मैस्लो ने इस हायरार्की को एक ट्रायंगल फॉर्म में या कोन में अरेंज किया था। इसमें सबसे लोअर लेवल पे उसने फिजियोलॉजिकल नीड्स या बायोलॉजिकल नीड्स को इंक्लूड किया था, जिसमें फूड, वाटर, स्लीप, शेल्टर और एक्सरसाइज एक्सेट्रा को इंक्लूड किया था। अब्राहम मैस्लो ने बताया था कि ये सबसे लोअर लेवल की नीड होती है जिसे 85% पीपल कंप्लीट कर लेते हैं, और उसने इस हायरार्की के टॉप पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रखा था, जो हाईली पोटेंशियल था किसी भी पर्सन के लिए। इस हायरार्की को उसने लोअर लेवल टू हाई लेवल की फॉर्म में अरेंज किया था, और उसने बताया था कि जो नीड इस हायरार्की के सबसे बॉटम पे होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और जो सबसे ज़्यादा टॉप पर होती है वो सबसे ज़्यादा वीक होती है। कि इंसान इसका मतलब कि इंसान जितनी जो नीड इस हायरार्की के बॉटम पर होगी, इंसान उसको उतनी जल्दी कंप्लीट कर लेता है, और जो जैसे जैसे इस हायरार्की की स्टेज आगे बढ़ती जाती हैं, इसकी कंप्लीशन या फुलफिलमेंट की रेट डिक्रीज होती जाती है। एट द As the name of the theory indicates, Maslow believed that these needs exist in a hierarchical order. This progression principle suggests that lower level needs must be met before higher level needs. The deficit principle claims that once a need is satisfied, it is no longer a motivator because an individual will take action only to satisfy unmet needs. If you look at this pyramid, you can see how Maslow's needs are organized, with basic physiological needs such as air, food, water, and sleep at the bottom, and the idea of a self actualization, or when a person reaches the full potential in life, at the top. Again, according to Maslow, before a person can take action to satisfy a need at any level on this pyramid, the needs below it must already be satisfied. यानी कि अब्राहम मैस्लो का मानना था कि इंसान अपने किसी भी लेवल की नीड्स को जब तक कंप्लीट नहीं कर लेगा, जब तक फुलफिल नहीं कर लेगा, तब तक वो दूसरी नीड्स की तरफ नहीं जा सकता। हर एक थ्योरी की कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। ऐसे ही अब्राहम मैस्लो ने की इस नीड थ्योरी की भी कुछ इम्प्लीमेंटेशंस हैं। उसमें फर्स्ट है, द behavior of an individual can be understood as optimistic and humanistic attitude by this theory of hierarchy. पहला जो इम्प्लीमेंटेशंस है वो ये हैं कि अब्राहम मैस्लो ने बताया कि अगर कोई भी इंसान किसी भी अपनी ज़रूरियात की चीज़ के लिए मोटिवेट होकर कोई एक्शन करता है या कोई भी स्पेशल टाइप का बिहेवियर करता है, तो उस बिहेवियर के बेस पर उस इंसान के बिहेवियर की को डिस्क्राइब किया जा सकता है कि उसका बिहेवियर ऑप्टिमिस्टिक है या ह्यूमनिस्टिक एटीट्यूड के थ्रू है। Second one is the behaviors like social, diagnostic and individual can be described by this theory of hierarchy. अब्राहम मैस्लो की इस हायरार्की थ्योरी के द्वारा इंसान के सोशल, डायग्नोस्टिक और इंडिविजुअल बिहेवियर को भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। थर्ड वन, इंटरनल पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी अंडरस्टैंड बाय सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थ्योरी। अब्राहम मैस्लो की इस हायरार्की थ्योरी के द्वारा किसी भी ह्यूमन बीइंग की इंटरनल पावर्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो फिफ्थ नीड होती है या फिफ्थ नीड जो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इसके थ्रू इंसान के हम इंटरनल पावर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हर एक थ्योरी की अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो हर एक का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है। अब्राहम मैस्लो की थ्योरी में भी कुछ क्रिटिसिज्म थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला ड्रॉबैक था और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, एक्टिवेशन ऑफ वन नीड एट वन टाइम। अब्राहम मैस्लो का मानना था कि जब तक कोई भी इंसान की नीड पूरी नहीं हो जाती, तब तक वह दूसरे लेवल की नीड तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन ये ह्यूमन बिहेवियर में या प्रैक्टिकल में अगर इसको देखें तो ये होना पॉसिबल नहीं है कि अगर एक ही टाइम पे एक ही नीड एक्टिव होगी, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसान मुआशरे में रहता है, उसकी ज़रूरियात अलग होती हैं,
अगर कोई सी चीज़ की इंसान की नीड है एक पर्टिकुलर टाइम पर, ज़रूरी नहीं है कि उसको एक ही नीड हो। अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको 2 नीड्स भी हो सकती हैं, और उसको अगर किसी मांग को पूरा करना है या उसे किसी नीड को पूरा करना है तो उसके लिए वो डिफरेंट रेस्पॉन्सेज भी दे सकता है। ये फर्स्ट और मेन ड्रॉबैक था इस थ्योरी का। सेकंड वन इज द डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज बाय मैस्लो इन दिस हायरार्की आर म्यूचुअली ओवरलैप विच कॉज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अननेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्टडी। अब्राहम मैस्लो की इस हायरार्की में जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं वो एक दूसरे के को ओवरलैप करते हैं, म्यूचुअली ओवरलैप करते हैं, जिससे उसको समझने में या उसकी स्टडी करने में कॉम्प्लेक्सिटी आती है। थैंक यू।